हम ये बेसिकली एलईडी लाइट और रोबोटिक्स में डील करते हैं। Thank you. Mr. Hari? Yes, my name is Hari Kutti, and I am an instrumentation engineer. Currently, I'm working with National Chromatography Incorporation. This is a US-based company, and we are into HPLC consumables required mainly in pharma industry. So I'm taking care of sales for Pan India for this company, and I have around 8+ years of experience into B2B sales. That's Okay, it. thank you. Kartikeya Mathur? Hi, good evening, everyone. I am Kartikeya Mathur. I belong to Jodhpur and I'm pursuing my MBA, and I'm also assisting my father on family business. Thank you. Okay, thank you. Nandan? Hello everyone, my name is Nandan. I'm from Hyderabad. My age is 24 as I am into two startups right now. First one is an educational. I told you bringing the PhD faculties to the schools, and the second one is a construction based. Like I did not explain you about what my thoughts in it. Why not a farmhouse? We do have acres of land, but we somehow not have a farmhouse. What we think, and it was my idea. This was me. Thank you. Okay, thank you. Mr. Ravi? Hi everyone, good evening. This side Ravi Kumar from Bangalore. I'm by profession into sales. My specialization into building automations and electronic security products. Thank you. Thank you. Neeraj just joined. Yes, Neeraj, please introduce yourself. Yeah, hi everyone, here this side. I'm based out of Gurgaon, working into data related technologies. Thank you. Thank you. Okay, so today's Atul sir, please introduce yourself. हमको भूल जाते हैं, कोई बात नहीं. हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, आपको दिखा होगा. बहुत अच्छी बात है. वो that's the purpose of life कि अपने आप को भूल जाइए. कि तो नाम है अतुल कुमार, एक कंपनी चलाते हैं Ren Ventures. I run a company called Ren Ventures and also part of many non-profit organizations, mainly promoting entrepreneurship. Okay, so yeah, myself Vishal, and I run a company called Learning While Traveling, which is mainly educational tours, but we are also into e-learning of kids, known as LWT Junior. So okay, so introduction round is finished, I think. There might be some people joining later, so okay, so today's topic, I think it was proposed by Kartikeya only, regarding this advertisement industry. So advertisement industry अभी कैसे चलेगी, क्या चलेगी? Pre-COVID, I think it was all in the boom, and there was this printing ads, hoarding and things like that. There was offline ads, online ads, and I guess post-COVID lockdown, things are mainly moving towards this online advertisement, not so much in the offline advertisement. So let's understand the offline advertisement only. How much impact do you think has happened? I mean, is it like fully gone, or is it there is still some scope for some of the things? क्या लगता है अभिषेक? What do you think? हेलो. हाँ बताओ. इसे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में मेरे को उतना बेनिफिट नहीं दिखता है. यानी क्योंकि हमको ऑफलाइन में जो भी बोलिए, जो 1-to-1 दुकान में जाकर या ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपना ऑनलाइन में देखें एडवर्टाइजमेंट करके. ऐसे एज फॉर एग्जांपल फेसबुक पे हम अपने पैसा लगाते हैं, 1000 रुपए 2000 रुपए जो भी हुआ है, ठीक है, और उसमें दिखलाता है कि आपका 500 आदमी के पास शो हुआ है, 1000 आदमी के पास शो हुआ है. एक आदमी भी एक क्लिक किया, 1-2 रुपया काट लिया, उसमें से माइनस हो जाता है. पर अभी तक मेरे को फेसबुक से आज तक एक भी लीड जनरेट नहीं हो पाया है.
ठीक है। तो इसलिए हमको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से बेटर ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट लगता है, और उसका ब्रांड वैल्यू भी ज्यादा बेटर लगता है मेरे को, क्योंकि ऑनलाइन में तो आजकल हर कोई आ गए हैं। आप फेसबुक खोलिए या कोई भी सोशल साइट खोलिए, इतना सारा आता है कि लोग इग्नोर करने लगते हैं, यार क्या ये फालतू का चीज आ रहा है। ठीक है, शायद इसीलिए हमको लगता है कि YouTube को भी लाना पड़ा प्रीमियम मॉडल, कि बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते थे एडवर्टाइजमेंट से। तो भाई तुम प्रीमियम पेड करो, तुम्हारे पास एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा। ओके, ठीक है। तो इसमें लेकिन एक और चीज है, आई थिंक, बट अभी जैसे तुम जो येन स्टार्ट किया तुमने, या मैंने भी इनफैक्ट ये GD स्टार्ट किया शुरू में, हम लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही कनेक्ट हुए लोगों से। तो एक चीज है कि फेसबुक वाला ऐड जो तुम बोल रहे हो कि स्ट्रेंजर वाला चीज, बट एक जान पहचान वाले के बीच एक ऐड चलाना। हाँ अभिषेक बताओ। नहीं देखिए, इसको हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं बोल सकते हैं लोग, मेरे को जैसा लगता है। इनफैक्ट हम ये चीज जितना कर रहे हैं ऑनलाइन में, यही चीज हम ऑफलाइन में, मान लीजिए कि पटना में होटल मोरिया में एक बड़ा सा इवेंट करा कर करते हैं, और उसमें हम 4-5 हजार रुपया मीडिया वाला को वो देते, क्या बोलते हैं, मीडिया मैनेजमेंट के लिए। तो इससे मेरा ज्यादा बेनिफिट होता है। उसके बाद उस कट को जो मेरा टीवी में आया है, पेपर में आया है, लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता। क्योंकि जैसे आप ऑनलाइन में देखते होंगे, एक दिन में मेरे पास कम से कम 20-22 इवेंट का आता है। लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। पर आप एक 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में आप इवेंट करते हैं, तो उसमें लोग जाना पसंद करते हैं। इनफैक्ट आप बिहार में होटल मोरिया में आप इवेंट रखते हैं, और इनफैक्ट 1000 रुपीज भी आप एंट्री फी रखते हैं, तो बहुत सारे लोग आने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएंगे। कम से कम ये सोचता है कि और कुछ नहीं तो मेरे को तो होटल मोरिया का खाना खाने को मिलेगा। बहुत आदमी खाने से वसूल लेंगे। खाना खाने को जाते हैं। यस, खाने के लिए वसूल लेंगे पैसा, एटलीस्ट खाना खा के। सही है, ठीक है। सो लेट्स हियर फ्रॉम अदर्स। सो व्हाट डू यू थिंक अतुल सर, व्हाट about advertisement, online versus offline? What do you think? हाँ, तो मेरे ख्याल से सिंपल है। मुझे थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के बारे में आइडिया है। मेरे काफी सारे दोस्त और फैमिली मेंबर्स एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक हैं पुराने जमाने के लोग, नॉन ऑनलाइन वर्ल्ड, नॉन डिजिटल वर्ल्ड, और दूसरे हैं ऑनलाइन वर्ल्ड, जो यंग जनरेशन, आज का बच्चा लोग, 4 साल 5 साल का बच्चा भी उठते के साथ उसको एक हाथ में आईफोन चाहिए, टीवी चाहिए, तो कुछ ना कुछ को एक मीडियम चाहिए। और पुराने जनरेशन जो थे, मेरे पिताजी का जनरेशन या दादा, उस जनरेशन को तो उठते के सुबह उनको न्यूज़पेपर चाहिए, कि न्यूज़पेपर मैगजीन वो वाले वर्ल्ड थे। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ने वाले लोग आज भी है। न्यूज़पेपर, बहुत सारे लोग आज भी न्यूज़पेपर ही पढ़ना, हम भी न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, कागज वाला न्यूज़पेपर, पलट के पढ़ने वाला। लेकिन फैक्ट यही है कि दुनिया का ट्रांजिशन बहुत तेजी से लास्ट 30-40 साल में, स्पेशली लास्ट 10 साल में बहुत तेजी से हुआ है। तो फिजिकल जो भी था वो ज्यादा चीज डिजिटल में कन्वर्ट होते हुआ है। और जब एडवर्टाइजिंग का स्पेंड देखा जाता है, किस मीडियम पे कहाँ पे ज्यादा लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री चलती है कंपनी के पैसे से, कि मैं मान लीजिए कि कोका कोला बेच रहा हूँ, पेप्सी बेच रहा हूँ, तो मैं टीवी पे भी दिखाऊंगा पेप्सी का ऐड, कोका कोला ऐड, रेडियो पे भी सुनवाऊंगा, रेडियो मिर्ची पे भी चाहूंगा कि मेरा ऐड आ जाए, टीवी पे भी आ जाए, न्यूज़पेपर में भी आ जाए, हर चैनल पे आ जाए। उसको हम ओमनी चैनल बोलते हैं। और वही चीज वो लोग गूगल पे भी करेंगे, गूगल एडवर्ड्स के थ्रू भी पेश करेंगे, वो लोग फेसबुक के भी थ्रू करेंगे, फेसबुक का ऐड के थ्रू। और दुनिया चेंज हो रही है। अब बहुत सारी दुनिया इंस्टाग्राम पे जा रही है, यंग जनरेशन, तो वो इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे। और बहुत बड़ा चैनल है जो लोग इग्नोर करते हैं, यूट्यूब।
तो यूट्यूब बहुत बड़ा, यूट्यूब को तो गूगल बनाने खरीदा यूट्यूब ने, बट यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजिंग का। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स को यूट्यूब ने पीछे छोड़ दिया है। टीवी चैनल लोग यूट्यूब पर जाकर बहुत सारे प्रोग्राम देख लेते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम सीरियल्स भी आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी आ जाते हैं, हर तरह का चीज प्रोग्राम आ जाता है यूट्यूब पे। तो यूट्यूब मुझे लगता है आज के जमाने में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और दुनिया के किसी भी टीवी चैनल से बड़ा कोई एक प्लेटफॉर्म है तो यूट्यूब। सिमिलरली दुनिया के किसी भी बड़ा न्यूज़पेपर से बड़ा कोई वेबसाइट है तो वो गूगल पे आपका न्यूज का साइट आ गया, या जो भी आपका प्रेफर्ड है, किसी का याहू होगा, किसी का MSN होगा, या इंडिया में रेडिफ बहुत पॉपुलर। तो ये जो ऑनलाइन जो साइट्स है ना, वो फ्यूचर है, और ट्रेडिशनल जो थे वो पास्ट है। लेकिन पास्ट वाले लोगों ने भी अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज किया है। तो देखिए कि सेम न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ा इंडिया का न्यूज़ पेपर चैनल है, पर उनका जो वेबसाइट है वो भी काफी पॉपुलर है। और सिमिलरली जो भी ट्रेडिशनल जो चैनल्स थे उन लोगों ने अपने आप को ऑनलाइन वर्ल्ड में भी एक चैनल खोल दिया है। तो फ्यूचर मेरे हिसाब से ये है कि ओमनी चैनल बोलिए या मल्टी चैनल बोलिए, अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज करना पड़ेगा। और एक खास बात है यूट्यूब और या गूगल और बाकियों में कि टारगेटिंग पॉसिबल है। आपने टीवी पे ऐड दिखाया, करोड़ों लोगों ने देखा, लेकिन आपके ऐड को किसने क्या देखा पता नहीं, क्योंकि सेम जेनरिक ऐड सब लोग देख रहे हैं, घर के बच्चे बूढ़े सब सेम ऐड देख रहे हैं। जबकि बाकी जो ऑनलाइन वर्ल्ड में क्या ना कि बहुत ही टारगेटेड एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पे कि मुझे ये ऐड दिखाना है, 16 साल के कम यंग किड्स को दिखाना है, या लड़कियों को दिखाना है, या ग्रैंड पेरेंट को 65 इयर्स के ऊपर के लोगों को दिखाना है। तो ये जो टारगेटिंग है ये ऑनलाइन में पॉसिबल है, और ट्रेडिशनल में थोड़ा सा हार्ड है। ट्रेडिशनल में भी आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको पता है कि ग्रैंड पेरेंट जनरेशन को रीच आउट करना है तो आपको न्यूज़पेपर और टीवी वगैरह जाना पड़ेगा, लेकिन टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का जमाना आ गया है, और उसके लिए ऑनलाइन इज द फ्यूचर। Okay. Karthikeya, what's your take? Online versus offline? Are you there? Okay, सौरव से पूछते हैं। सौरव, क्लियर देखो में what do you do? Online, offline, both percentage wise? मैं क्लियर देखो का बताता हूँ। उससे पहले जो अतुल सर ने बोला सब चीज अतुल सर ने पूरा बोल दिया, ज्यादा कुछ बचा नहीं है मुझे बोलने को। बट मैं थोड़ा सा डेटा दे देता हूँ। आई वॉज रीडिंग समवेयर कि अभी इंटरनेट पे देयर आर 400 मिलियन यूजर्स इंडिया आउट ऑफ 1.2 बिलियन पीपल। 400 मिलियन पीपल इंटरनेट यूजर्स हैं अभी, और 2022 तक ये 800 मिलियन हो जाएंगे। तो ऑडियंस अगर इंटरनेट पे है तो आपको एडवर्टाइजिंग इंटरनेट पे करना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस, यू कैन नॉट बी रिजिड विथ योर फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग। नंबर 2, वही जो मैंने अभी बोला उसी को थोड़ा सा और फंडामेंटली बोल देता हूँ। कस्टमर जहां पे है, यू हैव टू फाइंड योर कस्टमर। अगर आपका कस्टमर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन मार्केटिंग करिए। अगर आपका कस्टमर दिन भर फेसबुक पे बैठा रहता है तो फेसबुक पे करना पड़ेगा ना यार। यू डोंट हैव अ चॉइस। इफ योर कस्टमर आर यंग जनरेशन, टीन्स हैं, अर्ली 20s में है, 30s में है, तो यू डोंट हैव अ चॉइस बट टू मार्केट इन फेसबुक। और एक और चीज बोलना चाहता हूँ, जिसकी जितनी बेकार कंपनी होगी उसका सारा पैसा सिर्फ गूगल और फेसबुक ही ले जाएगा। अभी बता दिया मैंने। और कोई ही, सब लोग अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और ये सारा पैसा गूगल और फेसबुक पे जाते जा रहा है। अब वो अमीर होते जा रहे हैं। तो या तो अपनी कंपनी अच्छा कर लीजिए, नहीं तो गूगल और फेसबुक बिलियन ट्रिलियन डॉलर बनते रहेंगे। ओके, सही बात है। आई थिंक गूगल, फेसबुक और जो भी आई मीन अदर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, आई गेस लिंक्डइन भी थोड़ा शेयर ले रहा है अब। Okay, so let's hear from Ravi. What do you think? What's your take, online versus offline advertisement? Or Mr. Hari wants to say something. अच्छा, पहले रवि जी आप बताइए, उसके बाद then Mr. Hari can say. Yes, Ravi, please. See, advertisements is since beginning of the business. You talk about 18th century, 19th century. In fact, the invasions and all those things started because of that thing. Expansions was a motive, and then people wants to advertise their product to go global. So as Saurabh said or Atul sir said, ki yes, advertisement is mainly done to tap your offerings or informations to the segments of customers, and you want to penetrate your informations into their mindset.
So this there is a altogether in MBA we read one complete course on advertisement. So basically there are two in traditionals, two things was there, ATL and BTL. Now with the technology internet era after 2000s, the things started becoming digital, and so the people started going towards the mobile phone and internet, and then it took a form where from traditional advertisements it took to the online advertisements. And at present era, the advertisement is basically done on the targeted market. Targeted market, I mean to say customers or audience you have, and then only. But the main point which is being effective in online marketing, let's say if you're doing offline marketing or ATL BTL, let's say in televisions or newspapers, or maybe BTL with respect to the particular geographical banner, or maybe in magazines. Let's say we'll take the example of Abhishek. So as he was saying, offline is more giving profit, or maybe more calculative rather than the online marketing with respect to the investment. So yes, till the times your customers who is already, see, this is a prominent things comes with the people who do entrepreneurship into agriculture market, especially the products which is designed for the farmers and all. There the advertisement itself is a very big challenge, because the people like farmers, basically they do not have much influence on the online access to the platforms, different platforms, online access at large. Not I'm talking about the segments are there, but at large very the percentage is very less. Whereas in terms of the segments like the age between 17, 16 to 30 people, they are more of on the online platforms, and where they get the more mind share in terms of investment of time, as well as they seek the informations from there. So online advertisements is always good in terms of money calculations if you do target marketing in online. Let's say I'm putting my ad on Facebook, or I'm putting my ads on Google, but I do not have scope to present my product in different company geography. Let's say Abhishek working on Bihar, or maybe in particular to Chhapra and all, but he do not have right now spec or expansions to put product to Bangalore or some other area. So if he is putting a banner over Facebook, that would be visible to barring the geographical area. Maybe it will be shown in the Bangalore also, and so. But again, it gives an influence in terms of seeking your moving out from your particular area, and then you can expand your business in the other geography. That gives a good mileage in terms of when you go to the online advertisement. Okay. Yes, Mr. Hari, you're done, Ravi, right? Yeah, right. Yeah. Yes, Mr. Hari, please. Yes, I want to share few my personal experiences. Like when I started my career, I was working with Shriram Finance, Shriram Transport Finance. So this is the company which I work for first time, and the model is a bit different from what other companies are doing right now. So if I ask anyone, like, have you ever seen the ad of Shriram Transport, whether online or in a TV? So the obvious answer is no, because they don't have an advertising, neither online nor offline, and they're only but still how they are making the business, like the business is around 2000 crores, no, 2 lakh crores I guess, of assets under management. So this is the Asia's largest NBFC that is having so much of assets attached to itself, and it's a very organized like non-banking finance company. But the thing is, they don't have any advertisement. They don't put any advertisement, neither online nor offline. So it is all through word of mouth. Their biggest weapon is like word of mouth. So this I just want to let everyone know, like, though online is there, like Saurabh rightly said, कि Google आपका share लेके जाएगा.
So Google को आपने share दिया है, that's why Google is taking that share. So if your dependency is more on online, like Facebook and Google, definitely they are going to take your share. But if you are also working on the same models like word of mouth or maybe normal like offline marketing, so this becomes your core strength then. Because if everyone will take support of Google and become startup or well organized, so it is not possible. Google ko bhi uska they also have to run a company as a online business. So most of the things are controlled by Google now. Now they are trying to more do this like they are trying to do this more, like they creating some database also where everything will be there, like Google database. आप इस location में गए तो कौन सी shop नियर में सबसे बेस्ट है वो भी बता देंगे कुछ दिनों में. So this is dependency on online, but yeah, there is a large chunk of market which is not online still. So if we can focus that, we can encash that opportunity, that is also very good. Like the people who don't really rely on internet or don't know how to use internet, that is a huge But market Hari, in that India is still. decreasing day by day. यही तो मैंने बोला. The offline market, वहाँ पे internet No, that penetration is तो बढ़ रहा है ना. हाँ. So that offline market is slowly getting converted to online. Then what will you do? Offline will No, become it is zero. not. No, it is not यार like that. जियो 500 रुपए में जियो फोन आ गया है. We हाँ, have got Jio phone in 500 rupees. Data had हाँ, become free. Now it is they are charging. But the rate at हाँ, which internet penetration is increasing in all these tier 3, tier हाँ, 4 हाँ, villages and all these हम्म, taluka and gaon. So in some time, as I told, by हम्म, 2020, 800 million people will be on internet, and then only little bit are left, equal amount. So that will again be covered in, let's say, next 2 years. Then what will you do? in that case, Another point on that is Google and Google will enjoy its supremacy as a search engine. Have to pay for Google AdWords or we'll have to pay for search engine optimization like that. But वही मैं बोल रहा हूँ कि if you can reduce the dependency on online, that will be also very good in this situation. क्योंकि अगर हर कोई online करेगा, the competition will be immense, and you can't be able to compete with everyone. Like there are many other big players also who will be नहीं हरि जी, there. मेरा पॉइंट एग्जैक्टली उल्टा है. ऑनलाइन में हाँ, फायदा क्या है ना कि मेरा एक हाँ, छोटा सा चाय का दुकान है. मान लीजिए कि अभिषेक जी के छपरा में मेरा छोटा सा चाय का दुकान है. तो ऑनलाइन के हाँ, थ्रू मैं बहुत टारगेटेड कर सकता हूँ किसको दिखेगा, ज्योग्राफी वाइज, जेंडर वाइज, एज वाइज. तो मैं छोटा सा 1000 रुपए के बजट को भी उस पर्टिकुलर सेगमेंट में टारगेट कर सकता हूँ. ऑफलाइन में क्या प्रॉब्लम है कि मिनिमम साइज ही मुझे 10,000 1 लाख का खर्च देना पड़ेगा. न्यूज़पेपर में ऐड देना हो या टीवी में तो बड़ा अमाउंट है. और वो किसने ऐड देखा, उस ऐड को देखने में और क्या कन्वर्जन हुआ, बहुत मुश्किल होता है. जबकि ऑनलाइन का इसलिए पॉपुलैरिटी बढ़ा, गूगल एडवर्ड्स का या फेसबुक के एड्स का या बाकी सारे ऑनलाइन का, क्योंकि उनका मेट्रिक्स ट्रैकिंग काफी आसान है. यू कैन ट्रैक कि किस चैनल से कितने लोगों ने आपके साइट पे विजिट किया, कितने लोग आपने प्रोडक्ट बाय किया. तो पूरा कन्वर्जन साइकिल ऑनलाइन में ट्रैकेबल है. ऑफलाइन में मैं जानता हूँ जो कंपनीज करती थी, बहुत सारी नियल्सन और बहुत सारी जो एजेंसीज हैं जो ट्रैक करती हैं, उनका काम ही है ट्रैक करना सारे मीडियाज का कितना सर्कुलेशन है, कितना यूजर बेस है. तो पूरी दुनिया में ऑनलाइन बढ़ रहा है और बढ़ते रहेगा, और ऑफलाइन घट रहा है और घटते रहेगा. और एक और रीजन है जैसे मेरा एक क्वेश्चन है अतुल, एक पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए. तो वर्ल्ड का जो डिजिटल दुनिया बट गई है 2 भाग में, एक है डिजिटल और नॉन डिजिटल. तो डिजिटल वर्ल्ड जो है ना 2 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है, ऑलमोस्ट 3 बिलियन हो चुकी है. वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन से ज्यादा है. तो लगभग 2-3 बिलियन जो है वो ऑनलाइन है. तो डिजिटल में जो नहीं है ऑब्वियसली वो 5 बिलियन लोग ट्रेडिशनल चैनल के लिए खुले हुए. ज्यादा बड़ा मार्केट ट्रेडिशनल मीडिया है. लेकिन मैं ग्रोथ बोल रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज का भी ये फोकस है कि ये डिजिटल हैव्स एंड हैव नॉट का जो डिवाइड है उसको खत्म किया जाए.
कि जिन लोगों के पास इंटरनेट है और कुछ लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, तो नहीं है ना, उन लोगों के डिवाइड को खत्म करने के लिए पूरे वर्ल्ड में कोशिश चल रही है, गवर्नमेंट के द्वारा, फिलैंथ्रोपिस्ट के द्वारा, कंपनीज के द्वारा। तो ये हैव्स एंड हैव नॉट्स का डिवाइड जो डिजिटल नॉन डिजिटल का खत्म हो जाएगा कुछ सालों में, मे बी 2025 तक हो जाएगा, कि ऐसा कोई इंसान नहीं बचेगा दुनिया में जिसके पास इंटरनेट नहीं हो। उस समय में क्या होगा कि जो ट्रेडिशनल मीडियम के पास कोई उपाय नहीं बचेगा, कि उनको भी ऑनलाइन पार्ट पे अपना प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। यस, मेरा एक क्वेश्चन था अतुल सर इसमें कि बेस्ड ऑन द एग्जांपल दैट यू कोटेड कि आपको बिहार में लाइक अभिषेक एंड यू आर ओपनिंग अ टी शॉप इन बिहार एंड you are taking help from Google, like if someone searches tea shops nearby, so एक्चुअली गूगल में भी मेरा थोड़ा बहुत जो ये 360 व्यू वगैरह है उसमें भी मैंने एक बार डिटेल में स्टडी किया था। सो इट व्हाट हैपेंस इज यू पे फॉर द you will pay for the listing firstly, so it is privately listed, then only your shop will come in the top 5 list, right? It is like that, like if you search for tea shop और आप उस एरिया में ही है, जैसे मैं आया हूँ वहाँ पे बिहार में और मैं आई एम इन दैट सेम एरिया, then if I am searching for tea shop, so there is a probability, it is not a confirm कि आपका first आएगा, that depends on the reviews, what reviews you get and how much stars you have earned in the Google reviews, right? So Google में अगर आपका suppose there are 10 tea shops in the same area, so all the 10 will be shown based on the performance or based on the like किसने पैसा किया पे किया है ज्यादा Google को। तो ये दो चीज है। तो आप जितना पैसा पे करोगे गूगल को उतना आपको ऊपर पहुंचा देगा वो, बट आपको देयर इज प्रोबेबिलिटी जो है इसकी कोई गारंटी नहीं देता गूगल कि आपके शॉप में आएगा कस्टमर को अगर लगता है कि मेरे को 2 नंबर का पसंद आ रहा है, सो वो वहां पे भी जा सकता है। जो पर्सन है, if he feels like I want to go to 3 number shop or I want to go to another shop, so even that is possible। और उसमें एक और चीज है कि if at all like there is some mistake and someone gives you a bad review, so then your listing automatically comes down, Google cannot stop that, you have to pay again for that, so again आपको पैसा देना पड़ेगा। So how you मैं will run the अभिषेक जी का एग्जांपल, हरी जी मैं अभिषेक का एग्जांपल देता हूँ कि मेरी कोई चाय की दुकान है या कोई छोटा सा बिजनेस है, तो मैं गूगल पे नहीं डालूंगा, मैं वहां पे एक पोस्टर लगाऊंगा, वहां पे एक बैनर लगाऊंगा, इवेंट कराऊंगा, वो अलग चीज है। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि कुछ चीजों के लिए लोकल ज्यादा काम करेगा, लोकल के लिए मेरा जो ऑडियंस है ना, ज्यादातर के पास इंटरनेट नहीं है, यूज नहीं करते हैं, तो गूगल एडवर्ड देख के नहीं आते, वो देखते हैं पोस्टर लगा हुआ है उस कंपनी का या उस दुकान का, तो पोस्टर देख के जाते, तो मैं पोस्टर लगाऊंगा, तो वो ऑफलाइन आ गया। तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि हाइपर लोकल मार्केट में या ट्रेडिशनल मार्केट में मेरे क्या हो सकता है कि एक बैनर और पोस्टर वो ज्यादा काम आएगा, या उसके बाद भी अगर थोड़ा सा और भी बड़ा हो गया तो मुझे होता है रेडियो मिर्ची से ज्यादा लोग आएंगे, मेरे ऐड को ज्यादा लोग सुन पाएंगे कंपेयर टू गूगल के थ्रू। मेरा जो कहना था ना कि किसी भी बिजनेस का अगर मार्केट थोड़ा ग्लोबल है कि ऐसा सामान बेच रहा है जिसपे आपका प्रोडक्ट भी ऐसा है कि कोई भी खरीद सकता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक मित्र है रोहित त्रिपाठी, वो रांची में एक बिजनेस चलाते हैं, उनका बिजनेस का नाम है रांची मॉल, देख लीजिए ranchimall.com होगा आई गेस। तो रांची मॉल कोई भी मॉल में कोई सामान नहीं, वो कपड़ा या इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बिकता, रांची मॉल डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचता है। तो रांची मॉल का एक केवल वेबसाइट है और फेसबुक है, और उनका फिजिकल कोई दुकान है ही नहीं, क्योंकि उनके जो कंसल्टिंग सर्विसेज हो गए या उनके ऑनलाइन बहुत सारे जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो लोग, तो उनके लिए ऑनलाइन इज अ चैनल। अभिषेक इज दैट एक्सट्रीम। रांची मॉल का एग्जांपल दिया मैंने रोहित जी का, जो कि उनके प्रोडक्ट्स ही सारे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। वह अभिषेक जी का प्रोडक्ट फिजिकल वाला है, वो काफी लोकल है। अभिषेक जी का एम्बिशन प्रॉब्ली नहीं होगा कि मेरे प्रोडक्ट को लोग न्यूयॉर्क से भी और लंदन से आगे खरीदे, लेकिन जिस दिन अभिषेक जी उस सेक्टर में आ जाएंगे तो अभिषेक जी आएंगे, और उसके लिए भी उपाय है। आज अभिषेक जी ने एक पटना में ही एक पार्टनरशिप सेटअप किया जापान के विकास जी उनके साथ। तो कैसे रीच आउट हुआ, अल्टीमेटली ये व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हुए, तो ये ऐड नहीं डालना पड़ा, जस्ट कम्युनिटी के थ्रू। तो वो भी एक एडवर्टाइजिंग नहीं है, बट कम्युनिटी चैनल है।
कि आज विकास कुमार और अभिषेक जनता दोनों एक दूसरे से मिले, कैसे मिले? ये लोग व्हाट्सएप के थ्रू मिले या फेसबुक के थ्रू मिले। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन है, मतलब कि सबके लिए हम एक चीज नहीं बोल सकते। मैंने बोल दिया। Yes, Mr. Ravi. Ravi ji. Yes, then Saurav can say. Yes. So my point with relate to Hari ji. See, advertisement is more of sharing the informations. एक visibility is a different thing, and advertisements two kind of. See, advertisements also include publicity. तो आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज है जो एक पब्लिसिटी स्टंट करके भी दे गो वायरल एंड देन प्रोडक्ट और मे बी सर्विसेज और द ऑफरिंग्स बीइंग नोन टू मेनी पीपल विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो वो भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत आज के जमाने में फायदा है कि यू कैन डू इट। और फिर दूसरा ये भी होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कि ऑफलाइन के लिए आपको कंप्लीटली प्लानिंग करना पड़ेगा, थोड़ा भी सही लेकिन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मे बी बैनर में ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक बंदा चाहिए जिसको जो बैनर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, या फिर जब आप पैम्पलेट डाल रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगेगा, प्लस आप बैनर के लिए भी कहीं ना कहीं जगह एक पर्टिकुलर पॉइंट ढूंढ के फिर उस पे बैनर डालेंगे, उसका एक कॉस्टिंग भी रहता है, प्लस अगर कोई इवेंट भी कंडक्ट कर रहे हैं तो उसका भी एक पर्टिकुलर कॉस्टिंग रहता है, और उन सभी का भी ऑडियंस बुलाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर मीडियम यूज करना ही पड़ेगा। Whereas in ऑनलाइन में क्या है कि सपोज टुमारो आई गॉट एन आइडिया टू स्टार्ट विथ, तो मुझे उसके लिए किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। आई कैन मेक विद द हेल्प ऑफ फ्यू वेबसाइट्स अवेलेबल जहां पे मैं मार्केटिंग के कुछ पैम्पलेट्स तैयार डिजाइन कर सकता हूं खुद से ही, एंड देन आई कैन डू इट ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिकली। और मैं उस आइडिया को टेस्टिंग बहुत अच्छे से कर सकता हूं कि हाँ मेरे आइडिया के ऊपर में लोगों का क्या विचार है, या फिर मतलब हाउ आई एम गेटिंग फीडबैक ऑन माय आइडिया कि चलेगा नहीं चलेगा। सो और ये सब चीजें फ्री में हो सकता है आज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन टारगेटेड मार्केट, जहां पे आप पर्टिकुलरली चूज कर सकते हैं कि whom I want to target in terms of all aspects of advertisement, जो कि पहले होता था कभी कि अगर मुझे इन केस अगर मुझे एक टारगेट ऑडियंस 20 इयर्स टू 35 इयर्स का करना है, तो इन 2000 के टाइम पे जब मैं एमबीए कर रहा था उस टाइम ऐसा था कि आई नीड टू गो अहेड विद द न्यूज़पेपर। सबसे जो प्रोमिनेंट चीज था कि न्यूज़पेपर में ऐड डालिए, आपके लोकेलिटी और आपके जो सोसाइटी है वहां पे इंफॉर्मेशन जाएगा, अदरवाइज यू गो एंड पुट द एडवर्टाइजमेंट टू नेशनल न्यूज़पेपर जिसका एक और अलग से ही कॉस्ट रहता था। एंड टुडे पीपल हु आर देयर, अगेन वन मोर पॉइंट इज दैट दिस इज वन थिंग कि लाइक कॉस्ट इफेक्टिव काफी है ऑनलाइन मार्केटिंग एट सम एक्सटेंड। सेकेंड पॉइंट, आपका जो ऑडियंस है वो काफी सिगमेंटेड आप कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में, वेयरएज ऑफलाइन मार्केटिंग में आप ऑडियंस का सिगमेंटेशन बहुत कम कर पाएंगे। जियोग्राफी का तो कर पाएंगे, लेकिन ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ एज ग्रुप, इन टर्म्स ऑफ लाइक मेल फीमेल, इन टर्म्स ऑफ educational background and everything you can figure it out. Like in Facebook also you can put lot of criteria to make your ad visible to so particular group, or maybe एक और जो एडवर्टीजमेंट अभी यूज होता है इज बेसिकली इज द कम्युनिटी मार्केटिंग, जो आजकल बहुत चल रहा है ऑनलाइन में खास करके। यू सी एनीबडी हु हैज लेट्स से अभी टिकटॉक था या फिर मतलब जो भी ये सब यूट्यूब पे बहुत सारे प्रैंकस्टर हैं दिल्ली में जो बहुत वीडियो शूट करते हैं, लेकिन बहुत सारे छोटी छोटी कंपनीज है वो सिर्फ उनको छोटे पैसों में 2000 3000 5000 रुपए देकर एंड दे टेक देयर ऑडियंस एज देयर प्लेटफॉर्म टू एडवर्टाइज, जो कि ऑनलाइन में पॉसिबल है क्योंकि उनके पास एक सेट ऑफ कस्टमर्स ऑलरेडी बन चुका है और जिसको आप पुट थ्रू कर सकते हैं। लिंक्डइन में भी ये चीज हो रहा है, फेसबुक पे ऑलरेडी है, एंड अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो, इंस्टा पे है, तो एक ये भी आ रहा है। तो एडवर्टीजमेंट्स आज के दौर में बहुत हद तक सिगमेंटेड हो गया है। पहले बहुत ग्रुप टुगेदर था जहां पे मेनली ऑफलाइन में सिर्फ एटीएल बीटीएल ही था, उसके बाद में कुछ हद तक पब्लिसिटी था, आप किए, मीडिया पिकअप किया तो मे बी नेशनल न्यूज चैनल्स पे जाएगा और मे बी नहीं भी जा सकता है। सो एक डिपेंडेंसी फिर भी रहता था इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस काउंट। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यू कैन count who has come to your advertisement, you can know who has given the data, you can use that data to promote like locally to
that particular customers, or you can make them as a customer, which is more benefited right now in online market. और इसी पे एक और वर्ड मुझे याद आ कि कंज्यूमर, लोग पता नहीं कंज्यूमर का डेटा चाहिए नहीं, कंज्यूमर इज द डेटा, आप ही डेटा है कि आपका क्या टेस्ट है, आपका क्या लाइक है, आपका क्या प्रेफरेंस है, या आपका क्या सेक्स है, आपका क्या एज है, तो यू आर द डेटा। और वो एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन में कैप्चर करना इजी है, ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़ा हार्ड है, थोड़ा मुश्किल है। एक और ऐड मैं करना भूल गया, इफ यू परमिट, हरि जी के ही पॉइंट पे, वो जो एक उन्होंने पॉइंट रखा था कि आप ऑनलाइन मार्केट में आप तो आते ही आते हैं, साथ में आप कॉम्पिटिटर को भी साथ में लेके आते हैं, दैट इज वेरी ट्रू। लेकिन आप इससे सोचिए कि उस कॉन्सेप्ट पे ही बहुत सारी कंपनियां चल रही है। सी मोस्ट ऑफ दी ऑनलाइन अभी जो भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, चाहे आप जोमेटो, आपका स्विगी या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब सारे उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं कि आप सिर्फ प्रोडक्ट देखते हैं और उसके प्रोडक्ट के अनुसार आपको बहुत सारी कंपनियां दिखती है। देन यू हैव और रिव्यू सिस्टम्स, जहां पे आप एज ए कस्टमर्स एटलीस्ट यू फील लाइक हाँ ठीक है, ये जाने लायक नहीं जाने, बेसिस ऑन दैट रिव्यू सिस्टम्स। और बहुत जगह पे वो ऑर्गेनिक भी है, बहुत जगह पे वो करवाया भी जाता है। सो इट्स अगेन मिसलीडिंग, तो दोनों जगह है। एडवर्टीजमेंट इटसेल्फ इज अ मिसलीडिंग, वी कैन नॉट से कि ऑल एडवर्टीजमेंट आर वेरी मच ऑथेंटिक एंड काइंड ऑफ। आप देखिए कि हम लोग एक ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट में फेयर एंड लवली का एडवर्टीजमेंट चल रहा था। It was long back, 30 years it was going in the market, 25 years it was going into the market. अभी कोई उस पे क्लेम किया है, and now that fair things has been gone down as an advertisement just because of the racial discrimination. तो ये भी है कि एक अवेयरनेस अब इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग क्लेम कर लेते हैं इमीडिएटली कि दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड, और दिस इज बैड, नॉट बैड। तो ये भी एक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का फायदा है कि you get the feedback immediately from the customer sides or maybe from the audience sides. Yeah, yes Saurabh, please. दो चीजें बोलूंगा एडिंग ऑन टू व्हाट रवि सेड और जो अतुल सर भी बोले थे। एक्चुअली ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ना ट्रैकेबल है, तो यू नो आपका आरओआई निकल रहा है नहीं। आप न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, अब आप ट्रैक ही करते रहो कि वो बंदा न्यूज़पेपर का ऐड देख के आए। Saurabh got disconnected, I guess. कोई और बोलना चाहता है? He got disconnected, so I will add the same points कि ऑनलाइन में बिल्कुल, हाँ, तो ऑनलाइन में बिल्कुल ये ट्रैकेबल है। आप ईच एंड एवरीथिंग से कैन ट्रैक ऑन कौन आपके पेज को लाइक किया है या सब्सक्राइब किया है या फिर इंफॉर्मेशन देना चाहे। और फेसबुक ऐड में भी एक और क्लैरिटी ये रहता है कि फेसबुक आपको जब इंफॉर्मेशन कोई आपके साथ में शेयर कर देता है तो ही पैसा कट होता है। तो फेसबुक ऐड, व्हाट इज द बेनिफिट, आप 500 से भी अपना ऐड स्टार्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, which is a very minimal amount, and just you pay 500 rupees and you can get your audience connected. No, Ravi ji totally agreed with the points. मेरा जो कहने का मतलब ये है कि advertising is not the only thing that will drive your business. क्वालिटी में भी फोकस करना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन में जितना आसानी से आपको मिल रहा है, आसानी हो भी सकते हो। नहीं, वो आपकी उतना आसानी से आपके हाथ से अलग चीज है ना हरी, वो अलग चीज है। हाँ, those are two different things. Different things. We are not mixing. प्रोडक्ट में दमी नहीं है तो आप एडवर्टाइज करते हो। No. Yeah. Sorry. Yes, Saurabh, please. अगर आप बोलू? हाँ, सॉरी मेरा आईपैड डेड हो गया था। ओके, सो दो चीजें बोलना है मुझे। पहला कि yes Saurabh कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इज ट्रैकेबल। मतलब मैं क्लियर, देखो मैं तो ए/बी टेस्टिंग करता हूँ। फॉर एवरीबॉडीज इंफॉर्मेशन, ए/बी टेस्टिंग है कि मैं 2 ऐड चलाता हूँ ऑनलाइन, एक डिफरेंट टारगेट सेगमेंट को, एक डिफरेंट सेगमेंट को, डेमोग्राफिक्स, जेंडर, हर चीज अलग अलग सेलेक्ट करता हूँ। वॉट एवर वर्क्स फॉर मी, फिर वहां पे मैं करता हूँ। सो ये सब आप ऑफलाइन में नहीं कर सकते हो। नंबर 2 पॉइंट, हरी जी आप कहाँ से हैं, विच पार्ट ऑफ इंडिया? मुंबई। मुंबई, यस। नेटिवली कहाँ से हैं आप? बेसिकली सर अमरावती के पास में अमरावती जगह है, डिस्ट्रिक्ट है। क्या बात है।
आई नो, क्योंकि Okay. मेरा इंजीनियरिंग सबको नागपुर से है। सबको याद करना है सबका, ठीक है ना? रैगिंग जैसा सबको सबका नाम अच्छा। पता याद होना चाहिए। आज छोटा सा विशाल बहुत community खुश लग रहे हैं, ये हम लोग का पैसा लेकर ना बीच में पहुंच चुके हैं। Yeah, please Okay. continue, Saurabh. तो यार मैं क्या बोलो हाँ सौरभ। चलिए A/B testing, तो A/B testing. हाँ ठीक है, मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, वो हो गया A/B टेस्टिंग। सेकंड पॉइंट ये है कि क्लियर देखो, कैन एनीबडी गेस, क्लियर देखो का ऑर्डर्स ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन से स्टेट से आता है? हम लोग मेजोरिटी नॉर्थ इंडिया फोकस्ड कंपनी है। दिल्ली एनसीआर में ही मेरे 30-35 आउटलेट्स हैं, एंड देन उसके पेरिफेरी में है। बट कैन एनीबडी गेस कि कहाँ से आते हैं मेरे को मैक्सिमम ऑर्डर्स ई कॉमर्स में? उत्तर प्रदेश। नो। कर्नाटका। So it basically comes from AP और तेलंगाना से आंध्रा। आता है। मेरा एक भी दुकान नहीं है एपी में, एक भी दुकान नहीं है तेलंगाना से। और ऑल क्रेडिट टू मार्क जकरबर्ग। मैं ऐड चलाता हूँ और वहां से आता है मेरे को। तो मैं ऑल ओवर इंडिया ऐड चलाता हूँ एक्सेप्ट दिल्ली एनसीआर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो ऑलरेडी मेरा प्रेजेंस है ऑफलाइन। तो एक तरीके से मेरे बोर्ड्स ही मेरे लिए, मेरे जो 35 स्टोर है, 35 स्टोर इज ऑफलाइन मार्केटिंग टूल्स फॉर मी। सो मैं दिल्ली एनसीआर में ऐड नहीं चलाता हूँ, रेस्ट ऑफ इंडिया में ऐड चलाता हूँ, एंड आई गेट मैक्सिमम ऑर्डर्स फ्रॉम एपी एंड तेलंगाना। एंड सो ऑल थैंक्स टू ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, मेरे को बैठे बैठे वहां पे भी मेरा मार्केटिंग हो रहा है जहां पे मेरा फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, और मेरा कोई बंदा वहां जाएगा और कितना खर्च करेगा। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल टू रीच द कस्टमर। Yeah, sure. Yes, Mr. Hari, please continue what you are saying. Yes, reach that is okay. Like local, अगर आप मेरा जो point था, what I wanted to explain is not like online is better than offline. Just saying कि if you are too much dependent on online, then ultimately it's your product and it's your quality that drives the business. It is not the advertising or the marketing that can drive for too long. और वही चीज मैं बोलना था कि हर चीज मिक्स, आप दो चीजों को मिक्स अप कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं, वो फिजिकल प्रोडक्ट क्वालिटी एंड वो सारी चीजें अलग चीजें हैं। आई थिंक नहीं, तो एडवर्टाइजिंग में जो ठीक है, अगर वो अलग चीज इन द सेंस मैं जो नेगेटिव जो आता है ऑनलाइन मार्केटिंग में, वो चीज मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ रिव्यूज का भी उसमें काम रहता है, और क्योंकि कस्टमर इज वेरी स्मार्ट दीस डेज। वो लोग कोई भी चीज खरीदने जाएंगे, 10 जगह जाके रिव्यू चेक कर लेंगे, और इन केस इफ यू डोंट कम अप विद द क्वालिटी, और इन केस किसी के साथ डिससैटिस्फैक्शन है, तो ये जो ऑनलाइन टूल है दैट इज गोइंग टू एक्ट अगेंस्ट यू ऑल्सो। भले ही आपने 500 रुपए दिए हो, बट उसके पीछे आपका कितना लॉस हुआ है वो आपका ट्रैकिंग उसका नहीं होगा, कभी उसका ट्रैकिंग नहीं होता है ऑनलाइन में। वो चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि उसमें क्या होता लॉस के लिए आप ट्रेडिशनल बिजनेस में भी ना, मुझे कौन से रेस्टोरेंट में खाना है या चश्मा खरीदना है, क्लियर देखो से नहीं खरीदना ना, तो मैं दो लोगों से पूछ के लेता था। प्रॉब्लम था ट्रेडिशनल बिजनेस में कि लोगों से रिव्यू लेना, रेफरल लेना थोड़ा हार्ड था। ऑनलाइन थोड़ा आसान हो गया, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ऑनलाइन में पूरी दुनिया से ले लेता हूँ, और ऑफलाइन में मुझे पड़ोसी से पूछना पड़ता है। यस, करेक्ट। एक चीज मैं बताता हूँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है, रवि कैन ऐड आफ्टर आई से। सो आई थिंक चीज हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट नहीं होगा तो बहुत सारा चीज नहीं हो पाएगा। देयर इज अ catch-22 सिचुएशन हियर। एक्चुअली ऐसा बोल सकते हैं कि इट्स बेसिकली प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय मार्केटिंग, यू नो, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेंथ। कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं है, लेट्स से, या फिर बहुत समझ में हो, तो उसका एडवर्टाइजर जबरदस्त होना चाहिए ना कि वो प्रोडक्ट जाए। सारे चीजों में नहीं हो पाएगा ये, कुछ चीजों में यहाँ पे तो वेल सो इजी मेजर। A lot of people get into that product, like ये जैसे Fair and Lovely is one good example। पता नहीं कितने लोग गोरे हुए उससे, बट कितने साल चल गया। Yes।
So I just wanted to add a point with respect to Hari ji कि offline online marketing, let's say जो हरी जी बात कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स के, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. यहाँ पे ये है कि मुझे अगर एडवर्टाइज करना है तो हाउ टू गो अबाउट इट. Shall I go with offline or shall I go with online? So looking at that perspective, because every advertisement do have a cost which is apart from your regular cost to the company. Let's say if in the month of, let's say I have a business of mango, and for mango there are different markets altogether with seasons of mango, and I am there in Bihar, and this is the seasons when mango grows and all. So I know that this time I need to put my effort to know the people about my offerings, then only people will order from different geography. Putting my advertisements to local geography will only fetch me local customers. But if I am planning to put my product to different geography, either I had to connect with somebody in Maharashtra, I had to connect with somebody in Karnataka, I had to connect with somebody in Telangana, Andhra Pradesh, main mandi, and there I can put up a hoarding and which can give me a mileage or maybe. But at the same times, I can go online, I can segment my product to particular geography, and I can flush put it in the online, and people can connect with me. They can give the data on my advertisements, and I can connect them offline one-to-one, and I can push my product. One point. Second point is, I'll give you this example. See, there is one market which was segmented to local at one point of time, but today they're doing good business only because of this platform, online platforms, let's say particularly WhatsApp and all. I'll tell you, there is a market of jewelries, especially the American jewelries, which used to be, ladies used to buy lot of, and there are a lot of guy from Rajasthan and all, they used to sell. So पहले ये चीज है एक पर्टिकुलर जियोग्राफी मतलब, लेट्स से आई एम देयर, सो मैं आजू बाजू के घर में जो लेडीज रहती थी उनको प्रमोट करता था वो बंदा. बट नाउ दैट मार्केट इज कंप्लीटली ऑन व्हाट्सएप. एक कम्युनिटी फेसबुक पे डेवलप कर लो, एंड देन यू पुट योर प्रोडक्ट ऑन अ डेली बेसिस to the WhatsApp group, and then people order from different geography, and just you receive the cash through the online platform like Paytm and all, and you do the delivery through the courier. So those businesses got a lot of mileage due to just an online marketing, जो कि कहीं हद तक एक particular maybe segmented था to the geography. स्पेशली लेडीज प्रोडक्ट्स, बहुत सारे आप फेसबुक पे जब एड्स देखेंगे ना, तो मेनली यू विल सी लॉट ऑफ पीपल हैव अ कम्युनिटी वेयर दे प्रमोटिंग देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, लेडीज मेनली लेडीज प्रोडक्ट्स, जो ज्वेलरीज लेडीज के होते हैं, चूड़ी वगैरह जो भी, एंड फिर पर्स एंड ऑल दोज आर वेरी सेगमेंटेड प्रोडक्ट्स व्हिच इज देयर विद द कस्टमर्स. So those got a lot of tractions in terms of online availability of marketing or advertisement. ओके ठीक है. एक चीज और थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं, ऑफलाइन के बारे में सिर्फ बात करते हैं. आई थिंक अभी ऑनलाइन ऑफलाइन में आई थिंक प्रोबब्ली ऑनलाइन इज विनिंग हैंड्स डाउन. यस कार्तिक प्लीज. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि व्हिच ऑफलाइन मीडियम विल go away completely and which not. Yes, Mr. Karthik, please you add. नहीं, so I actually wanted to divert it towards something else. जब अपने discussion शुरू किया तो I would say कि I am still all, and I believe I always will be pretty much in favor of offline या फिर traditional advertising. But yeah, I would really want to know everyone's opinion on. You are muted. You are muted, I think. Okay. Anyway, let me put the question. So offline, offline I think he got disconnected. Okay. So offline में भी बहुत सारे चीज हैं. I mean there are a lot of things. There is he is connecting. There is like a new. Yes, Karthik, are you back? Yeah, hi. Yes, I don't know. आपने पहले भी you asked me तो मुझे कुछ problem हो रही है जिसमें I don't know whatever it is. तो I would really like to know everyone's opinion on customer retention. कि offline and online में
मतलब एडवर्टाइजमेंट इज गुड व्हेन ओनली व्हेन जब आपको अच्छी सेल्स जनरेट हो रही हो, बट मुझे पर्सनली ये चीज लगता है कि वो सेल्स आपको बार बार जनरेट होनी चाहिए, दैट इज व्हेन पैसा वसूल होता है. तो लाइक इफ इट्स फाइन, कैन वी टॉक अबाउट दिस थिंग? मुझे अच्छा लगा, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसीलिए. So your question is basically कि Karthik customer customer retention. retention in the online versus offline. What is the basically नहीं मतलब क्वेश्चन क्या है, कस्टमर रिटेंशन कैसे किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, किस में बेटर होता है? तो मैं जैसे बात करूँ ना, तो लाइक yeah, just a second please. One by one. Okay. Yes, Karthik, please finish. So you mentioned about second and like third tier cities. तो मैं एटलीस्ट जोधपुर जैसी ज्योग्राफी के बारे में बात करूं तो आई स्टिल बिलीव कि यहाँ पे ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट ज्यादा इफेक्ट करता है. दैट इज मोर बिकॉज ऑफ the presence of tangibility and it personal affection होता है. मुझे लगता है कि competitive market में any given point of time offline या traditional marketing ही काम आती है. तो I personally think कि traditional market में customer retention काफी better and higher रहता है as compared to online. That's my opinion. तो yeah, very true it is. इसको लेकर के है. Hello. Yeah. Yes, please, Mr. Hari. Yeah, the retention thing, coming to retention, so it is very true कि traditional marketing or the person who like if you know the customer personally, there are much more chances कि confidence level आपका हमेशा high रहेगा as compared to online marketing. You will always have that confidence that this set of people like my products और ये रिपीट होने ही वाला है नेक्स्ट मंथ अगेन. सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये एक प्लस पॉइंट होता है. प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट कस्टमर रिटेंशन का जो कार्तिकेय ने पूछा है सवाल, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एज यू आर फ्रॉम जोधपुर, राइट? या सो पीपल ओवर देयर लाइक दे आर वेरी फ्रेंडली, और मारवाड़ीज दे आर द मोस्ट गुड बिजनेसमैन. तो वो लोग how they treat the customer is you should treat your customer as if how you would be treated when you are going to buy something. So the same way आपको, हाँ, so यही चीज आपको वहां पे भी यूज करना है अगर कस्टमर रिटेन करना है तो. That is the only answer to that. If you don't like getting or you are getting duped by overpricing and all, and you don't like that thing, so just we have to do the same thing with the customers. Never dupe them for much more money, or koi naya aa gaya to chalo we are doing profiteering over there. So that is just an example. So mainly retention is only through that thing only, when you make the customer feel the same way as you want to be felt when you are a customer. That is, I want to say. Yes, Nandan, you have something to say, please? Yeah. Yes. As an example of a Byju's, as an Byju's educational platform, it's into an online and offline. It's into a traditional base, like it's into an international cricket brochure, and what they are doing as an keeping an Mahesh Babu, or as an offline marketing. Does offline marketing would be a large amount, as it could be if anyone say if we go to an offline, it should be a large amount, as a big people has to be involved in it. So you're saying in offline the money is more than online? Yeah, we will come to it. We'll I think we can analyze this. For Byju's, I think it will be different. Yes, Ravi, please. What's your... Okay, so I'll put a little bit of point in terms of Karthik question. Karthik, see, there is two terms that we used. Marketing is different, advertisement is different. Advertisement is part of marketing. Okay. Hanji. How these things play on, marketing is strategizing how to sell. Okay, let's say today as a company, I decided I will offer 10% discount for this month on my all the products.
Okay. Mm-hmm. This is a part of marketing, but you need to communicate this informations to your customers, to your audience, to your target market, right? So that medium is advertisement. You got my point? हाँ जी. Now, advertisement will not fetch you in terms of retention of customers, but of course, advertisement will make your mind custom. There is a term called blind spot. Through advertisement, you can hit the blind spot of any customers. Let's say, see, just think of you as a customer. Okay, so how you choose a product when you go to the markets? Either you have a recall value of that product, one, or maybe you are aware of that product from somewhere. There could be price factor which will play you a role in terms of you're not aware of any product. Then you can choose. So these are the few mediums which help in terms of retaining your customers. Okay. Okay. So advertisements and marketing both are this is different, not for me, for everyone. Advertisement and marketing is different. Marketing strategy altogether different. Advertisement is a part of marketing where we use advertisement to communicate our offers to the customers. Even Just wanted to add some data. Not only to be done with a product, it is done for the company itself. You want to know your you want to make your company to be known to the people. For that also you do the advertisement, not only to the product. Even advertisement is done for particular segments of the product. Let's say today I am announcing a product in, let's say, Colgate itself. A Colgate have a tube, and today Colgate is coming with sachet pack. So for sachet pack, even they can make an advertisement. So, like that. Hope I am making a point in terms of your marketing and advertisement things, thinking of. In terms of retaining the customers, advertisement will not help. And I had something to say to Kartikeya specifically, and I completely agree with what Harij is saying. See, I used to work for G. G से मैंने अपना starting career वहीं से start किया. तो वहाँ we used to say that in God we believe, everybody else needs data. तो हम लोग opinions बहुत सारे दे सकते हैं, रख सकते हैं, but data क्या है? तो मैंने एक लिंक कट से गूगल का डेटा आ गया. डेटा इज कि अभी नंबर 1 प्लेटफॉर्म चैनल है टीवी आज भी पूरे वर्ल्ड में, बट नंबर 2 ऑनलाइन, नंबर 3 मतलब न्यूज़पेपर सबसे लास्ट में चला गया है. तो आप उस चार्ट को देख ले, बहुत क्लियर कट पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में अभी है. करंट वेयर द लार्जेस्ट ग्लोबल एडवर्टाइजिंग टीवी का है $182 billion, and if you take a paid search, which is number 2, Google and all that, $107 billion. Social media, Facebook and stuff, वो $84 billion, and newspaper $69 billion, यानी कि print advertising. तो ऑलरेडी मार्केट सेटल है. टीवी अभी भी आगे चल रहा है, बट विद इन 1 or 2 years टीवी भी पीछे चल जाएगा, एंड paid search advertising online will become the number 1. That is what the data is telling me, not my opinion. Yes, Sejal, please finish what you want to say. Yes, sir. Yes, please. Sir, जो question पूछा गया था, am I audible? Yes, you're audible. क्या हो गया? Are you there, Sejal? Okay, maybe are you there? Yes, you're audible, Sejal. Am I audible, sir? Yes. Okay, so to the question about customer retention, sir, I guess advertisement, be it online or offline, it just captures your attention for using it once, but the retention depends on the quality of the product. Like once you use it and you like it, you will surely use it for the next time. It won't depend on the advertising again, but customer retention mostly depend on the quality product. Sorry, product quality. Sure. Yes, Neeraj, please. या विशाल जी, काफी अच्छा डिस्कशन चल रहा है. टू द पॉइंट विच कार्तिकेय हैज रेज्ड, उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा. 2-3 चीजें हैं, पहले एक-एक करके थोड़ी
You got muted. Am I audible now? Yes, yes. हाँ नीरज बोलिए. ओके. एक बहुत कॉमन सा एक गूगल पे ढूंढोगे कार्तिकेय तो मिलेगा रोजर्स टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कर्व. ठीक है. तो बेसिकली उसमें होता क्या है, अमेरिका में जब फार्मर्स इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में थोड़ा रेवोल्यूशन की बात हो रही थी आज से 40-50 साल पहले, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड की ब्रीडिंग की कुछ कुछ चीजें चल रही थी और फिर उनकी अडॉप्शन देखी जा रही थी कि कैसे फार्मर्स उनको लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, नई क्रॉप्स आती हैं नहीं आती हैं. तो उसके अराउंड ये पूरी स्टडी हुई है आज से 40-50 साल पहले और बहुत रेलिवेंट है मार्केटिंग में. और ये रोजर्स टेक्नोलॉजी कर्व काफी कॉलेजेस में पढ़ाया भी जाता है एज अ सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग. इसमें क्या बोला जाता है, जो पहले कुछ परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं लाइक योर फर्स्ट 100 कस्टमर, मतलब वो परसेंटेजेस में बात करते हैं तो 3-3.5% की बात करते हैं. दे आर कॉल्ड इनोवेटर्स. yes, this is the curve which has been shared or screen. तो इनोवेटर्स होते हैं और उसमें आपका क्या है कि वो सिर्फ आपकी नोवेलिटी ऑफ आइडिया को देख के आते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अर्ली अडॉप्टर 13.5%, और फिर अर्ली मेजोरिटी 34%, लेट मेजोरिटी 34%. तो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ शू कि किसी ने बहुत ही अच्छा एक मटेरियल बनाया और उसने कहा कि मैं ये नए मटेरियल का शू लेके आ रहा हूँ. तो जो पहले 2.5% इनोवेटर्स आएंगे, दे विल लुक समथिंग कि ये जो मटेरियल की नोवेलिटी है, क्या नया मटेरियल आया है और उसके अराउंड क्या क्या चीजें हो रही हैं, जस्ट उसको समझने के लिए, क्योंकि उनको दे आर काइंड ऑफ इनोवेटिव माइंड्स कि उनको बस कुछ नया चाहिए, तो वो आपके साथ जुड़ेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट आती है अर्ली अडॉप्टर्स की, वो उसमें कुछ देखने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरह के वहां पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं. लाइक क्या मैं ये अगर जूता पहनूंगा तो क्या 5% तेज दौड़ पाऊंगा. ठीक है. और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट आती है अर्ली मेजोरिटी की, दे विल लुक फॉर लाइक समथिंग लाइक कि क्या मेरा इससे जो मेरे जूते की जो स्मेल है वो खत्म होगी, या क्या मेरे को पसीना कम आएगा. तो ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट सेगमेंट है. और जहां तक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बात होती है तो हर सेगमेंट के लिए स्ट्रेटजी अलग रहती है. और बीच में इन्होंने ये जो द काज़म दिखाया है, ये एक वो बीच का एक काइंड ऑफ नाला कह सकते हो, या एक ऐसा एरिया होता है जिसको आपको क्रॉस करने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ता है. तो ये इस रोजर्स इनोवेशन अडॉप्शन कर्व के अराउंड ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स डिफाइन होती हैं, तो आपकी टारगेटिंग, आपकी मार्केटिंग, आपकी सेल्स की स्ट्रेटेजी, वो सारी हर सेगमेंट के लिए अलग होती है. आप एक तरह से हर किसी को अप्रोच नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट चीज आती है मार्केटिंग फनल नाम का एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है. उसका भी आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करोगे तो वो भी मिल जाएगा. मार्केटिंग फनल में डिफरेंट सेगमेंट्स डिफाइन की जाती हैं. पहले लीड जनरेशन होती है, फिर लीड नर्चरिंग होती है, और लास्ट में जाके कहीं ना कहीं आपकी सेल्स वहां से डेवलप होती है. तो लीड जनरेशन जहां पे अवेयरनेस क्रिएट करने की मार्केटिंग कैंपेन जो बनती है कंज्यूमर रिसर्च के बेस पे, ठीक है, उसके अराउंड इवेंट्स, एडवर्टाइजिंग, ट्रेड शोज, ब्लॉग्स, जो भी है वो सारा आपका जस्ट आपके प्रोडक्ट के अराउंड मार्केटिंग. इससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, मार्केटिंग आ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग आ ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं. और अगर आप B2B कंपनी है तो आपके लिए जो मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा मैटर करेगी. अगर आप B2C है तो मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट करेंगी. और कई बार मैक्सिमम टाइम्स लोग इस चीज में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि एक्चुअली मुझे मार्केटिंग करनी क्या है, मुझे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन को एज सच पूरा का पूरा एक मार्केट करना है एक सेगमेंट को. तो उसके बेस पे फिर ये जो फनल क्रिएट होता है, आपका जो फनल का जो लॉस है हर लेवल पे, उसको आपको देखना पड़ेगा कि कितने लोग मेरे अवेयरनेस के थ्रू मेरे से जुड़े, कितने लोगों ने फिर एक्चुअल में इंटरेस्ट एंगेज हुए मेरे साथ, कुछ तरह का मतलब ईमेल कन्वर्सेशंस वगैरह या कुछ चालू हुआ, कितने लोगों ने फिर कंसिडर किया प्रोडक्ट को. ठीक है.
और फिर कंसिडरेशन के बाद इंटेंट आता है, इंटेंट के बाद फिर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट आता है, फाइनली जाके परचेज होता है। और इसमें आपका कहीं ना कहीं काउंट फॉल होता चला जाता है। तो अगर आप कहते हैं कि किस तरह से मुझे कस्टमर को रिटेन करना है, तो आपको ये फनल को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हर स्टेप को, कि कहाँ पे आपका कितना लॉस हो रहा है। शुरू में अवेयरनेस में 1000 लोग जुड़े, फिर इंटेंट 1/3 ने शो किया, ठीक है, तो लगभग 366 लोग रह गए। अब फिर मैं कहूँ कंसीडर, उसमें से भी हाफ ने कंसीडर किया, और फिर उसके बाद इंटेंट लाइक 1/4 ने फाइनली इंटेंट शो किया। उसके बाद उसके तो 3-4 लोग ही लास्ट में आगे बचेंगे। तो हर स्टेप पे यू नीड टू फाइंड इट कि कितने लोग हुए, मतलब फॉल हुए। और इसके अराउंड लोग एक और गलती जो जनरली करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि मुझे अपनी कैंपेन को बेटर करना है, तो वो वापस ऊपर से काम करना शुरू करते हैं कि मैं फनल को ज्यादा भर देता हूँ, अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट कर देता हूँ, और पैसा फेंक देता हूँ फेसबुक और गूगल को, और लोगों को तक पहुंचता हूँ, और मेरी फनल बड़ी हो जाएगी, और फिर मेरे जो नीचे है वो ज्यादा मेरे को परचेज वाले लेवल तक आने में ज्यादा लोग मिलेंगे। लेकिन आई वुड सजेस्ट आप उल्टा काम कीजिए। आप पहले समझिए कि परचेज से पहले कितने लोग थे, उनके फॉल होने का कारण क्या रहा, टेक फीडबैक and try to improve your product, try to improve whatever delivery you are creating, whether in terms of service or product। वहां से आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपका जो मार्केटिंग के बजट्स हैं वो भी कंट्रोल्ड रह सकते हैं, और आप इसको बेटर वे में यूज कर सकते हैं। That's it from my side. So just a second, exactly मेरा क्वेश्चन, आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली, आई जस्ट रियलाइज कि मुझे वो मेंशन करना चाहिए था। जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया था दैट वाज एग्जैक्टली रिगार्डिंग ब्रांड अवेयरनेस, मतलब ब्रांड और प्रोडक्ट ऑफ कोर्स एक अलग चीज हो गई। तो मुझे ये पर्सनली यही लगता था हमेशा कि एक ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपकी ब्रांड अवेयरनेस अच्छी रहती है। आई थिंक आई डिडंट प्रेजेंट इट करेक्टली, इट वाज माय बैड, बट मुझे यही लगता है। एंड मार्केटिंग फनल की जो आपने बात बताई, तो कुछ टाइम पहले आई वाज रीडिंग दिस अबाउट एडवोकेसी मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ बेसिकली। तो उसमें यही चीज होती है दैट ऑनलाइन marketing mein you are probably reaching a customer, and then the chances of him talking about your product or about your organization to someone else is less as compared to offline. So I can now connect the dots ki हाँ where I went wrong question put on करने में। but मुझे भी marketing funnel के बारे में yes exactly यही लगता है कि मैं brand awareness के बारे में यही लगता है कि मार्केटिंग और सेल्स एंटायरली दो डिफरेंट चीजें हैं। आप ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं, आई अंडरस्टैंड योर फादर इज हैविंग सम बिजनेस एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो आप इस चीज को बेटर समझते होंगे कि मार्केटिंग वाले बंदे से कभी सेल्स मत कराइए, और सेल्स वाले बंदे से कभी मार्केटिंग मत कराइए, ठीक है। उसका सेल्स फनल का भी एक अलग से कॉन्सेप्ट है, ट्राई टू रीड अराउंड दैट, उसका भी कभी डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। तो वहां पे भी यू कैन मिनिमाइज दैट दोस काइंड ऑफ लॉसेस व्हिच आई वाज टॉकिंग एट ईच स्टेप। तो ये दोनों चीजें अलग हैं, दोनों को अलग रख के, दोनों को अलग लोगों से करा के अगर आप अप्रोच करेंगे, क्योंकि सेल्स में कहीं ना कहीं कलेक्शन भी आ जाती है। कलेक्शन इन द सेंस कि पैसा इकट्ठा करना होता है जो प्रोडक्ट बेचने के बाद, ठीक है। तो वो सारी चीजों में अगर मार्केटिंग वाले बंदे को डालोगे तो वो वहां पे मिक्सअप हो जाती हैं चीजें, ट्रस्ट फैक्टर और वो सारी चीजें जो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेटेजी बना रहा है, तो वो वहां पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। So we can discuss it around in detail, लेकिन ये 2-3 कॉन्सेप्ट मैंने एक साथ बताए, and they all are somewhere अगर आप देखेंगे तो उनका आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है कि कौन सी सेगमेंट है आपकी कौन सी स्टेज है, आप प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हैं या ब्रांड मार्केट कर रहे हैं। आप अगर आप मार्केटिंग फनल में जाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि मेरा कहाँ पे ज्यादा लॉस हो रहा है। आप सेल्स फनल में जाएंगे तो वहां पे आपको समझ आएगा कि इश्यूज कहाँ है, और फिर नीचे से काम करना शुरू कीजिए। बजाय कि फनल को ज्यादा भरने की कोशिश करें कि गूगल को ज्यादा पैसा देना है, फेसबुक को ज्यादा पैसा देना है, ऑफलाइन को पैसा देना, ऑनलाइन को, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फॉल का रीजन क्या है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच से अगर काम किया जाए तो हमारी मार्केटिंग हमेशा, बाकी कितनी भी चीजें हम सोच सकते हैं उनसे हमेशा बेटर रहेगी। कि आप ये कोशिश कीजिए कि फॉल का रीजन क्या है। बस एक कमेंट करना चाहता था नीरज जी के बाद में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मार्केटिंग फनल एंड एवरीथिंग एल्स। जस्ट सेल्स और मार्केटिंग में मैं एक लाइन बोलना चाहता कि सेल्स मार्केटिंग का काम है डिमांड जनरेशन करना, कि लोग आपको जरूरत है, आपके अंदर वो इच्छा जागृत करना, एडवर्टाइजिंग इंक्लूडेड उसमें। और सेल्स का काम है
उस डिमांड को पूरा करना, कि जाकर कस्टमर को रियलाइज हुआ कि मुझे अब से ये नया लेटेस्ट आईफोन खरीदना है, लेटेस्ट कार खरीदनी है, तो ये मार्केटिंग का काम है कि लोगों के अंदर वो इच्छा जागृत कर दे, तीव्र इच्छा। और सेल्स का काम है कि एक डीलर के पास जहां पे भी सेल्स ने आपको बेच दिया वो चीज, तो सेल्स का काम उसके नीड को फुलफिल करना सेल्स का काम है, आपको वो प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल करा दिया। तो मार्केटिंग और सेल्स कहीं कहीं पे एक ही इंसान बहुत सारी कंपनीज में एक ही साथ भी काम करते हैं, कि बहुत लोगों का टाइटल नहीं होता है मार्केटिंग एंड सेल्स, तो the same person who is responsible for doing the sales, but sales वालों का भी कभी sales होता है revenue center, पैसा लाता है, कस्टमर से पैसा लेके आता है, जैसा नीरज ने भी एक्सप्लेन किया। और मार्केटिंग जो है कॉस्ट सेंटर होता है, मार्केटिंग पैसा मांगता है, मुझे ऐड प्लेस करना है टीवी में, न्यूज़पेपर में और गूगल में, यूट्यूब में, सब जगह ऐड प्लेस करना है। तो मार्केटिंग जो नॉर्मली खर्चा वाला चीज होता है, क्रिएटिव काफी होता है, सेल्स जो होता है उस खर्चे को लेवरेज कर कस्टमर से जाकर वो पैसा लेकर आता, बेच के आता है कुछ। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। होपफुली मैंने सही एक्सप्लेन किया नीरज। यस अतुल सर। ये अतुल सर आपने उसको बेटर में से इवन बेटर किया है, थैंक्स फॉर दैट। या नीरज, इवन आई अप्रिशिएट आपने जो भी कहा, बहुत अच्छा कहा है अभी रिगार्डिंग दिस marketing funnel and all. It is really like the same thing that even I would like to say. But one thing is अतुल सर ने जैसा rightly कहा कि most of the companies don't have two different things, like marketing अलग रखा है, sales अलग रखा है. Hardly any startups or maybe the companies that are operating now, they don't have such two different segments. वो एक में ही दोनों को consider कर लेते हैं. They want both to be done by the same person, like even the sales and even the marketing. That is one thing. Or another thing is coming to B2B and B2C, right? So B2C में you can have lots of online marketing, but just I want some experiences from your side, like maybe Ravi ji and Neeraj can add, like how you can is there any possibility of online marketing or doing such type of online marketing in B2B, like for example if we consider a Honeywell product and a Honeywell smoke detector that comes into a BMS as well and in an industrial thing also. So is it really worth investing in online, or you have one person doing marketing? So what is your experience? Saurav can also answer this. Yes. He has opened lot of franchisee. Yes, Saurav, please. तो मैं बता देता हूँ कि मैं फ्रेंचाइजी के लीड्स कैसे ढूंढता हूँ, which is completely B2B. So आप मेरे को लिंक्डइन में और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव देखते होंगे और यूट्यूब में. द ओनली रीजन इज, और जब भी मैं कोई यूट्यूब वीडियो पोस्ट करता हूँ तो मेरे पास उस दिन 10 नए लीड्स आते हैं. जब भी मैं कोई स्टोर अपडेट पोस्ट करता हूँ उस दिन मेरे को 10 नए लीड्स आते हैं. सो आई एम एबल टू जनरेट B2B लीड्स वाया सोशल मीडिया. And also we also run social media sponsored ads for generating leads, and I spend a decent amount. I have a monthly budget और उसमें मैं leads generate करता हूँ, and daily मेरे पास almost 10-15 leads daily आते हैं मेरे पास. क्योंकि amount ज़्यादा है तो conversion percentage बहुत less है. 100 आते हैं तो एक convert होता है. Saurav, 1 minute, just cutting you over here. थोड़ा सा मुझे differ करना है कि B2B in the sense it is not a franchisee or anything that I am talking about here. It is B2B means your product, you are giving it to the another business. Like if you have a brand, you are giving your product to the another business. So that's what I want, like product based, not really like franchisee. That's what I want to understand. The laws will still be the same. Yes, Saurav, please complete. Then others can add. Saurav, please. तो ठीक है, मतलब I've completed my point, but I'll address Hari's point also. Let's say Hari ने Honeywell का smoke detector की बात किया था, and let's say that has to be installed in all the buildings जो real estate apartments बन रहे हैं उसमें आपको करना है. तो it's very simple.
आपको उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन आप दोनों कर सकते हैं। पहला है कि यू हैव टू जनरेट डिमांड फ्रॉम द B2C कस्टमर। तो आपको स्मोक डिटेक्टर्स का वैल्यू पैदा करना है B2C में। अगर B2C को समझ में आएगा वो चीज, तो अपने बिल्डर से खुद ही डिमांड करेंगे, और बिल्डर से डिमांड करेंगे तो बिल्डर के माइंड में 4 होंगे कि हनीवेल भी देता है, लेट्स से आई डोंट नो HP भी देता है, लेनोवो भी देता है, ये सब लोग भी देते हैं। सो देन आपका कितना ब्रांड वैल्यू उस टाइम पे क्या होगा, कितने प्रोडक्ट्स हैं, किस बजट में प्रोडक्ट्स हैं, वो सब विल डिपेंड एंड अकॉर्डिंगली द बिल्डर विल चूज योर स्मोक डिटेक्टर। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। Yes, Mr. Ravi, please. Okay, so I will answer this point. So हरी जी, बिल्कुल B2B में जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो B2B सेगमेंट्स के हैं, we do it और करना ही चाहिए, but this will not give you mileage in terms of buying the product. This will give you mileage in terms of awareness of the product. With, let's say I have already done it with Honeywell because I belongs to Honeywell. I have worked with them. Okay. So I tell you, so in Honeywell particularly, we promote a lot of things on B2B platform. Let's say LinkedIn or lot of IndiaMart is there, and lot of platforms are there who basically deals into B2B segments. Okay, Trade India is there and all those. So we promote products in terms of awareness. Purchasing will be chances will be less. Okay, but awareness will go more. And these all products, especially if you talk about particular to Honeywell, technical products are more of solutions driven. Where let's say I am a product manager, I have a site where I need the installations to be done. So it will give me a mileage in terms of understanding the brands. Okay, Honeywell, these products I can go ahead with. But the purchase will happen locally, maybe from the distributor or maybe from the retailer, dealer, or kind of, even from the company itself. So this is the one segments of the product which we talk about. Ravi ji, okay. Totally agree. Totally one agree. More point, second point I would like to add. See, in B2B segments also, we promote products to large enterprises. Let's say hotels which is coming in, maybe Hyatt is coming in, maybe this kind of hotels which comes in, okay, with huge budgets now. So their B2B segments is not at all play any role in terms of product awareness. It more of company oriented awareness. Let's say I am Honeywell who is promoting these products, okay, but it will only be helping in terms of awareness, no purchasing, no any other things, only the awareness, because the main persons who will be making the deal is the responsible persons, maybe salespersons or maybe account manager, maybe whoever taking that project in that segment. He will be the right persons who will make the deals, but awareness will be there with B2B segments. See, one example I will give you right now, as startups, you know, maybe Udaan. They have developed within these 3 years only. They started in 2017, 2020, and they're doing very good in Bangalore, B2B segments marketing company. They only generate leads for B2B company. As on date, they have not entered into B2C. IndiaMart is there since 1992. 1992 or 1998, they are there in the markets. Only lead generations in B2B segments. Yes. Like that, there are a lot of Trade India is there. Right. No, but that is correct. But LinkedIn is the best platform to generate B2B leads. Even people do tell like for job you need to go to LinkedIn, but I say LinkedIn is the best platform to generate B2B leads because customer is more aware of, will fetch awareness in terms of your product. One, those who are there, 90% are the genuine people. You will not find ungenuine people on LinkedIn. So you are making people aware. So at least people will seek your informations in terms of brand. And exactly. Yes. No, Ravi ji, my question is when when we say about the conversion ratio for the online leads in B2B, speaking of B2B, it is hardly less than 5%, I suppose. No, not so. No, maybe even less. Yeah. Yeah. It depends on B2C में कम होता है, B2B में तो ज्यादा होता है, ज्यादा रहता है. That is what point और is. क्या? ज्यादा रहता है.
No, depends on the product again. Then in that case. Right, that is what I'm saying. On the basis of product, let's say I have a product HR management tool, and if I am floating it to the LinkedIn, tagging a lot of HR people, of course I am getting an awareness in terms of writing the mail to the that particular persons immediately, and I can have a chances to revert back. Okay, but if for that product I am putting up physical ad. I just want to share one experience, like coming to India Mart. I used to receive many leads from India Mart when I was working from a previous company, Control Print Limited. So they are into batch coding machines. Okay. Actually, so batch coding machines is purely an industrial product. Yes. So you will write your barcode. Even Honeywell has some barcode. Yes. 1300. Yes. Yeah. So depends from company to company. So the leads that we used to get. Hardly like it was not the target audience. When you go to the India Mart or the Trade India or whatever leads they will give you, most of the time it will be like a small scale user or maybe a small scale trader. और मैंने तो personally experience किया है कि out of 100 hardly like 5 to 10 will be genuine, though will be interested. Or hardly the target audience will be around 20 out of 100. So 20% only you will get from online. That is what my my experience is. I don't know how about Honeywell, because I did work with Honeywell also, but I was with a channel partner for gas detection systems. So yeah, so I do have experience with this detection systems and all, but hardly like there the role of online is not clear, because the lead generation is like totally I'm not sure like if you can put some light on that. It is not that transparent. It is not the genuine target audience always. Only a handful of people will be the target audience from that. So जो भी दिख रहा है, जिसको कुछ पता भी नहीं है स्मोक डिटेक्टर के बारे में, उसने भी रिक्वायरमेंट डाल देगा उसमें कि मैं That is what, Hari, like see in B2B, when you go to online marketings, you need to have your target audience very defined. That is why in the beginning of my discussion, I told you in online market, one of the particular thing is you have a 100% effect in terms of your defining target audience. You can define your target audience in terms of lot of category, not categories like geography, categories like age groups, category like education systems, category like profile which they belongs to. Let's say I have my product or I have my company and I want to advertise only to the people who are admin of any company or who are a product manager of any company, who are MEP of any company. Okay. So my ads will be floated to only those people who are who falls into this category or these kind of word segments have with their profile on that one. This in terms of like LinkedIn do it. Okay, on LinkedIn you marketing no, we are getting confused. I just said about lead generation that we are getting through India Marts, right? So in lead generation, how a lead is generated, someone searches for smoke detection in Google और India Mart पे वो page open करके या India Mart में वो search करता है, then he posts a request कि I am looking for a smoke detection system, right? तो ये जो रोल है that is done by the online marketing agency India Mart. So they मैं कुछ बोलूं? ठीक है, मैं okay नीरज you take it then I will add. Yeah. Actually इसको कल कंटिन्यू करते हैं. I think ये बड़ा टॉपिक है. Okay, yeah. I think ठीक है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में एक और चीज है, you have to hunt for people, right? That hunting you do through online media. वो आपको ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना कौन है क्या है, कहाँ से निकालेंगे contacts. So just to add up the flavor. ठीक है, okay, let's continue this tomorrow. I think it's a big topic. I think it will take at least 2 sessions. Today we have merged lot of topics together. Marketing, sales. हम लोग advertisement discuss कर रहे थे. एक time के बाद वो खत्म हो गया and we started on marketing, sales, lead generation. कोई बात नहीं, सब आपस में. Vishal, we are not happy with your services. Okay, we'll compensate tomorrow then. उसके कारण हम लोग थोड़ा offline marketing का वो जो एडवांटेज डिसएडवांटेज तो वो पूरा भूल ही गए डिस्कस करना. कल करते हैं ना, कल करते हैं, इसीलिए एक दिन का सजा देते हैं सबको, अपने को भी. ओके, चलिए बाय बाय. बाय, गुड नाइट. गुड नाइट.